ابھی چلتے ہیں نگران صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج ہمارے مدرسۃ المدینہ منڈیر میں تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے مدرسۃ المدینہ کے سارے مدنی عملے کی طرف سے، مدنی ممنوں کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، آج تشریف لائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ دیگر ممالک کے اندر بھی آپ کا مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بیرون ملک میں، تو وہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر آپ کا جانا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ ہمارے مدرسے میں بھی آئے تو یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کو کیسا لگا یا دیگر اس کے حوالے سے کچھ معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے، اور آج اگر دیکھا جائے دعوت اسلامی کے مدارس پاکستان میں اور بیرون ملک میں کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے، اور شاید کوئی دن ایسا نہیں ہے جو میری معلومات میں ہو کہ آنے والا ہر دن جو ہے دعوت اسلامی کے ہر شعبے میں ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے، ترقی کا دن بن رہا ہے۔ اور اس طرح مدارس المدینہ میں جیسے اگر بات منڈیر کی جائے تو چونکہ کھاریہ شہر تو میرا بھی قریب ہی یہاں لالہ موسیٰ شہر ہے، تو آنا لگے رہتا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے کی اگر بات کی جائے تو یہاں اسی مدرسۃ المدینہ میں ہمارے طلباء کی تعداد جو مجھے یاد ہے 17 طلباء یہاں پڑھتے تھے، اور آج جب قاری صاحب سے، ناظر صاحب سے، ہماری عمر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہماری اس مدرسۃ المدینہ میں تعداد اب کم و بیش 150 کے قریب ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے درجے بھی بڑھے ہیں، طلباء ہمارے بڑھ گئے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کا خاص کرم ہے ماشاءاللہ کہ مدارس المدینہ کی تعداد میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک جیسے اس مدرسۃ المدینہ کو آنے کا، دیکھنے کا موقع ملا، یہاں اخلاقی تربیت کا انتظام، پھر طلباء کا جو ہے ماشاءاللہ ایک جدول جو ہے بڑا اچھا ایک بنا ہوا ہے، پھر اساتذہ کے پڑھانے کا سلسلہ، ایک وقت کی پابندی، اور بہت کچھ اس میں شامل ہے۔ تو یقیناً اساتذہ کی بھی اس میں بہت خدمت ہے، بہت ان کی کوشش ہے، اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سی کارکردگی ماشاءاللہ اس کی پہلے سے بہتر ہے۔ تو چونکہ ہمارے ناظم بھی ہمارے مولانا عمر مدنی ہیں اس کے، تو میں نہیں عرض کروں گا کہ یہ اس کی وجہ ارشاد فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے مدرسے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، درجے بھی بڑھ گئے، کچھ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا فیض، نگاہ ولایت اور پیارے والدین کی دعاؤں، محبتوں، شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ جب یہاں پر سلسلہ 2014 کے اندر درس نظامی سے دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد یہاں پر 2014 میں جب شروع کیا تھا مدرسۃ المدینہ کا آغاز، اور وہ بھی اسی نیت سے کہ اپنا گاؤں ہے، یہاں پر دین کا کام ہونا چاہیے، تو 17 تعداد تھی۔ تو آج الحمدللہ عز و جل یہ ناظرین کو بھی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ 150 کے قریب ہمارے پاس مدنی منوں کی تعداد ہے۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں 7 درجے ہیں، 4 درجے حفظ کے ہیں، 3 درجے ناظرے کے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر تعداد کا جو دن بدن بڑھنا، ترقی کی طرف ہمارے مدرسے کا جانا، اس میں جو مین چیز ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ، اور الحمدللہ ہے بھی یہ کہ سرپرست اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس میں اس لیے داخل کرواتے ہیں کہ یہاں پر صرف بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، یہاں پر بچوں کی ساتھ عملی و اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ کتنے طلباء کرام ایسے ہیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ سے پڑھ کے اب جامعۃ المدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہاں پر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک نئی چیز شاید آپ کے علم میں آئے گی کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اندر کاپیوں کا نظام ہے، یعنی ایک طالب علم داخل ہوا، اب اس نے اپنا سامان لیا، امامہ شریف خریدا، مدنی لباس لیا، مدنی بیگ لیا، اب ہم ساتھ اس کے سرپرست کو کہتے ہیں جی آپ اس کو ایک اردو کی کاپی یا کوئی ڈائری لے کے دیں۔ وجہ کیا ہے کہ کسی بھی ہمارے استاد صاحب کے پاس وہ مدنی منہ قاعدہ پڑھے، ناظرہ پڑھے، حفظ کرے، قاری صاحب روزانہ اس کاپی پہ لکھ کے بھیجتے ہیں، اپنے پورے درجے کے تمام بچوں کی کاپیاں ہیں، وہ لکھ کے بھیجے گی جی کہ آپ کے بیٹے نے آج یہاں پر سبق پڑھا، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بہتری ہے۔ اب اس کاپی کے اوپر صبح سرپرست نے جواب لکھ کے بھیجنا ہے، وہ جواب کیا ہے؟
जवाब ये लिखना है जी, क्या आपके बेटे ने आपके वालिदैन के हाथ पाँव को चूमा, क्या इन्होंने 5 नमाजें पढ़ी, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। जब निगरान साहब मदरसे के अंदर कारी साहब बच्चे की तरबियत करते हैं, घर वालिदैन तरबियत करके भेजेंगे, तो फिर अल्लाह की रहमत से वो जो तालिब इल्म होता है ना, वो मुस्तकबिल का हाफिज कुरान होता है, मुस्तकबिल का वो आलिम दीन होता है और दीन इस्लाम का काम अच्छे अंदाज से करेगा। और दूसरी एक अहम बात ये है कि हमारा आपको पता ही है माशाल्लाह, आप जिम्मेदार हैं कि मदनी मशवरों का निज़ाम होता है। उस्ताद कराम का भी अलग से हमने हफ्ते वाले दिन नमाज ज़ोहर के बाद 1 घंटे का टाइम रखा है, यानी जो हमारे पास टीचर पढ़ाते हैं उनका मैं मदनी मशवरा करता हूँ। अब उसमें हर मरतबा एक हदीस पाक, पहले ना मैं अपना एक आपको अंदाज बता रहा हूँ, इनको सुनाई जाती है कि यार ये हदीस पाक हजूरुल इस्लाम की है, इस हदीस पाक के मुताबिक अगर हम अपने निज़ाम को देखें तो इंशाअल्लाह कभी भी हमें तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं होना पड़ेगा, अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाएगा। बड़ी मशहूर वो हदीस पाक है नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, जो मेरा उम्मती मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत देता है ना, मैं उससे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब पहली चीज़ क्या है, उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी बात करो तो सच बोलो। वअफ़ू इज़ा वअदतुम, वादा करो तो उसको पूरा करो। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करो। वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वग़ुद्दू अबसारकुम, बदनिगाही से बचो। वकफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने मुसलमानों को तकलीफ देने से रोके रखो। अब बहुत बड़ा ये हजूरुल इस्लाम का पैगाम अपनी उम्मत के लिए है। आका फरमाते हैं इस पे अमल करो, जन्नत की गारंटी मैं देता हूँ। अब मैं अपने उस्ताद कराम को ये हदीस पाक सुनाने के बाद ये कहता हूँ कि यार आपके पास ये तलबा कराम बैठे हैं ना, अगर एक क्लास में 20 तालिब इल्म है तो ये 20 बच्चे नहीं, ये 20 खानदान आपके पास हैं। अब हमने क्या करना है, बहसीयत एक टीचर होने के इनकी सच के ऊपर तरबियत करनी है कि हमने सच बोलना है। दूसरे नंबर पे इनकी ये तरबियत करनी है, बेटा अगर किसी से वादा कर लो ना उस वादे को पूरा करना। फिर अमानत का इससे ताल्लुक क्या है, ये बच्चे हमारे पास अमानत है। मदनी मरकज का हमारे ऊपर बहुत इत्मीनान है कि यार ये हमारे कारी साहब, इनके पास 20-25 तादाद है, तो ये कारी साहब के पास ये बच्चे एक अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं करेंगे, इनकी अमली अखलाकी तालीमी तरबियत करेंगे ताकि कल को उस्ताद साहब का भी नाम रोशन हो और हमारे शेख तरीकत का भी नाम रोशन हो कि यार ये दावत इस्लामी के मदरसे से पढ़ के आए। चौथे नंबर पे शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, इनको गुनाहों से बचने का ज़हन दिया जाता है, बेटा कोई भी बदकारी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, मोबाइल फ़ोन पे गंदे काम नहीं, स्क्रीन वगैरह पे जो मनाज़िर है वो भी नहीं देखने। फिर 5वें नंबर पे आका फरमाते हैं बदनिगाही से बचो। फिर उस्ताद कराम की भी तरबियत का सिलसिला होता है और मदनी मुन्नों की तरबियत की जाती है कि बेटा तुमने भी बदनिगाही नहीं करनी। आज बदनिगाही से बचोगे और हम बच्चों को ज़हन देते हैं जो जितनी ज़्यादा कोशिश बदनिगाही से बचने करता है ना, अल्लाह पाक उसको उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाएगा, यानी हाफ़िज़ा मजबूत होगा। और छठे नंबर पे प्यारा का फरमाते हैं अपने हाथ और ज़बान से मुसलमानों को तकलीफ ना दो। हम बहसीयत एक उस्ताद, बहसीयत एक मदनी मुन्ने, यार हमारा मजहबी ताल्लुक है, मजहबी तबके, हम मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, हमारी ज़बान अच्छी चलेगी, हमारे हाथों का इस्तेमाल दुरुस्त होगा तो मुआशरे के अंदर हमारा किरदार अच्छा होगा। तो इस तरह कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 दर्जे है और यकीन करें आपको खुशी होगी कि 8वें दर्जे की अब हमारी तैयारी है। तो हमारे मदरसे के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाइए। दावत इस्लामी का फैज़ान है, इसमें तलबा की भी तरबियत का अहतमाम किया जाता है और उस्ताज़ा की तरबियत का भी अहतमाम किया जाता है। और मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि इसकी बड़ी वजह ये है कि इसके बानी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया हैं कि आप अल्लाह के वली हैं और आपकी सोच और फ़िक्र इसके क्या ही कहने। जैसे आपने बच्चों को जो मदारिस मदीना में पढ़ने वाले हैं, जामियात में या दीगर मुबल्लिगीन हैं, इनको कुरान पाक की मोहब्बत का जाम पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ जो गूंगे बहरे अफराद हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आपने इनको महरूम ना रखा, बल्कि आपने इनका जो रिसाला नेक आमाल का दिया है जिसमें सवाल होता है कि भाई आपने आज 5 नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन जो गूंगे बहरों का रिसाला है नेक आमाल का, तो उसमें एक सवाल ये लिखा, क्या आज आपने एक रुकू की ज़ियारत की? तो कुरान पाक, ये अल्लाह पाक की ऐसी किताब है इसकी ज़ियारत करना भी अजर सवाब का बाइस है। और मुझे याद है कि कराची में एक छोटे से मदनी मुन्ने थे, गूंगे बहरे थे, तो उनके वाली साहब फैज़ान मदीना में हमें शिकायत लेकर आए कि शिकायत क्या थी, आप भी सुनकर हैरान होंगे कि मेरा बच्चा आपके इज्तिमा में आता है तो उसको आपने कुछ ज़हन दिया है कुरान पाक की ज़ियारत करने का, आप ये बोल तो नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन मामला ये है कि सारी रात कुरान पाक की ज़ियारत करते रहता है, सोते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो आप इनको समझाएं कि रात को जल्दी सो भी जाया करें।
तो ये है दावत इस्लामी का माहौल, जो गूंगे बहरे को कुरान से ऐसी मोहब्बत दे सकती है, तो जो बोलने सुनने वाले हैं उनको मोहब्बत क्यों नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर हमारे मदरसतुल मदीना को एक और एजाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों से माहनामा फ़िज़ान मदीना का भी आगाज़ हो चुका है। और आज से 1.5-2 साल पहले हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं मदरसतुल मदीना की मजलिस के, उन्होंने कॉल की मुझे कि आप अपने मदरसे का ना थोड़ा सा एक खाका बना के भेज दीजिए, कब शुरू हुआ, कितना अरसा हो गया, कितने तालिब इल्म अब तक हिफ़्ज़ करके चले गए, कितनों ने नाजरा पढ़ लिया, एक ना वो मालूमात वो मैंने लिखी। फिर किसी एक लाइव तरीन मदनी मुन्ने का थोड़ा सा ना वो इसमें ना तासरात भी लिखने थे जिसने जल्दी हिफ़्ज़ किया हो। तो मैंने फिर पूछा अपने ज़िम्मेदारान से कि ये क्यों इस तरह का सिलसिला कार हो रहा है। वो फरमा रहे कि मदनी मरकज़ की तरफ से फ़ैसला हुआ है कि आप हर माह के माहनामे में ना एक मदरसतुल मदीना पाकिस्तान का जो उसका तारुफ पेश किया जाएगा। अब मैंने सोचा हम एक गांव के अंदर बैठे, हमारा तारुफ कहाँ आएगा, बड़े बड़े शहर भी पीछे हैं। तो अल्लाह के फजल से जो चौथा या पांचवा ये सिलसिला हुआ, तो जो अभी माह दिसंबर गुजरा है 2020 का, रबीउल अव्वल का महीना, उसका जो शुमारा हमारा फ़िज़ान मदीना आया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके मदरसतुल मदीना मंडीर का तारुफ आया। माशाअल्लाह। तो आप मज़ीद मंडीर के आशिकान रसूल आपको मुबारक हो कि देखें आपके इस मदरसतुल मदीना को अल्लाह ने कितनी इज्जत से नवाजा है। अच्छा, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे ज़्यादा नाजरीन खारिया शहर के मंडीर के होंगे जो इससे मुंसलिक होंगे, तो यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा कि हम भी इस मदरसे का कुछ हिस्सा बने, इसमें कुछ ताउन करें। तो किन किन तरीक़ों से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो आइए ये भी नाज़िम साहब से पूछते हैं। ताउन के वाले से पहली बात तो यह है कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहला ताउन यह कि अपने बच्चों को हमारे मदरसे में दाखिल करवाएं। जब ये दाखिल होंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, हमारी भी और वालिदैन की भी बख्शिश का सबब व ज़रिया बनेंगे। दूसरा ये है कि माशाल्लाह आप सबको पता है कि मदारस जो हैं वो पैसों के बगैर, मदनियतियात के बगैर नहीं चलते। एक वक्त था कि 2014 के अंदर एक ही दर्जा होता था। हमारे मदरसे का जो समझ लें महाना खर्च था वो 15-16 हज़ार, सिर्फ एक उस्ताद साहब की सैलरी होती थी। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ पर 10 इस्लामी भाई काम कर रहे हैं, 7 हमारे टीचर हैं, ठीक है, एक मेरी जिम्मेदारी, एक हमारे और तालीमी नाजिम साहब हैं, एक हमारे मदरसे के खादिम हैं, बल्कि 12 इस्लामी हैं, 2 हमारे मदरसतुल मदीना के वाले से इस्लामी जो मदनी बस्ता लगाते हैं। तो इसमें इस वक्त जो हमारे मदरसतुल मदीना का माहाना खर्च है ना वो 2,48,205 रुपये, कमो पेश 2.5 लाख रुपये हमारे मदरसे का माहाना खर्च है। और ये वो खर्च है इसके अंदर बिजली का बिल और बकिया उस्ताद कराम का मुशायरा जाता है। तो मैं सबको ये भी अर्ज़ करूँगा कि आपके पास इतना बड़ा अजीम शान इदारा है, आप दिल खोल के इस मदरसतुल मदीना के साथ ताउन करें। और यकीन करें अल्लाह की बारगाह में सदका करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं जो खिदमत करते हैं या बच्चों से दुआ करवाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं से करम फरमाता है, उनकी मुश्किलें। बिल्कुल, मैं तो आपको मशवरा दूंगा, बल्कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो कोई एक ही ऐसे सामने आए कि वो ये सारा खर्चा अपने ज़िम्मे ले लें, कि अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, अपने साले सवाब के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। ये चंद अफराद मिलकर हो सके तो ये मदरसतुल मदीना अपने ज़िम्मे ले लीजिए, या जो भी आप इसमें ताउन करना चाहें, आप यहाँ आएँ, इस इदारे का विज़िट कीजिए। यहाँ हमारे